एडमिशन हो चुका, फंक्शंस हो चुका है, समझे। अब हम लोग नेसेसिटी पर आएंगे। नेसेसिटी, दैट मीन्स why do we need political party? पॉलिटिकल पार्टी की हमको जरूरत क्यों है, इस बात पर हम लोग आएंगे कि पॉलिटिकल पार्टी की हमको जरूरत क्यों है। पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले तो फंक्शन लिखिए, इट कंटेस्ट्स इलेक्शंस, पहली बात। दूसरी बात, इट फॉर्म्स द गवर्नमेंट एज वेल एज अपोजिशन। तीसरी बात, इट फ्रेम्स द लॉ। चौथी बात, इट एग्जीक्यूट्स द लॉ। इसके सारे फंक्शंस लिखने के बाद हमारा एक काम रहेगा कि हम ये लिख दें कि साहब ऑल द एबव मेंशन्ड functions are the solemn function of democracy and as it is carried on by the political party, so we need it to run democracy। बात समझ में आई। हमको डेमोक्रेसी चलाना है तो पॉलिटिकल पार्टी ही चाहिए, क्योंकि विदाउट हैविंग पॉलिटिकल पार्टी इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस ऑल्सो टू रन डेमोक्रेसी। दैट मीन्स ये एक पार्ट है कि हम फंक्शंस को लिखें और फंक्शंस को मेंशन करने के बाद हम जो है फंक्शंस को पहले लिखें, फंक्शंस को मेंशन करने और फंक्शंस को मेंशन करने के बाद हम अंततः यह डिस्क्राइब कर दे कि सारे फंक्शंस जो पॉलिटिकल पार्टी के हैं, these all functions are the solemn functions of democracy, and as it is carried, all these functions are as it is carried by the political party, so we need to have political party in democracy। एक उपाय है। दूसरा है इमेजिन, है ना। दूसरा है इमेजिनेशन। इमेजिन ए कंडीशन, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट पॉलिटिकल पार्टी we have to imagine, is it possible to have or not a democracy without political party? First of all, we have to think it, we have to imagine it. For what we have to do, a law should be framed that only individuals have to contest elections, है ना। We have to declare it that only individuals have to contest elections। That means 543
after the result of election. Now we have to make the serial number, highest vote gainer, PM. Okay. Second highest vote gainer, Home Minister. Third highest vote gainer, Defense. Fourth highest vote gainer, Finance. ऐसा करके हम चाहे तो 80 तक 1 to 80 रैंक जा सकते हैं. दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा. ठीक है, अब सरकार फॉर्म कर लेंगे, लेकिन इसके बाद सरकार चलाना डिफिकल्ट होगा. क्यों? क्योंकि टू pass a bill we need majority support. To pass a bill we need majority support. तो majority support हमारे पास नहीं होगा. क्यों? 1 to 80 ही ना हमको सपोर्ट करेगा. 543 में 1 to 80 जो मिनिस्टर्स हैं वही ना सपोर्ट करेंगे, बाकी लोग तो अपोजिशन में बैठे हुए हैं. तो सरकार कहता है, कानून कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि मेजॉरिटी पार्टी विल फॉर्म द गवर्नमेंट. हमारा संविधान ये कहता है कि जिस पार्टी को मेजॉरिटी होगा, मतलब मोर देन हाफ ऑफ सीट्स, द पार्टी व्हिच गेन्स दिस पार्टी विल फॉर्म द गवर्नमेंट. और हमारे पास अगर ऐसा नहीं है तो हम सरकार नहीं बना सकते. इसका मतलब सीधी सी बात ये होगी कि वी मे इमेजिन बट एक्चुअली इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल to have democracy without political party. Without political party, it is quite difficult to have democracy. We have discussed all these matters yesterday also. In the study class, we have discussed these matters. Now we have to think about how we can segregate, we can differentiate different forms of political party. Yesterday it was declared that there are three functions, there are three types of political party. Only some of them are national political party and the rest are regional or state level political party. That means a political party which contests elections in more than 4 states. A political party which contests election in more than 4 states. In Lok Sabha election. Okay, a political party which contests elections in more than 4 states in Lok Sabha elections and wins at least 4 seats and wins at least 4 seats and
must gains 6% of vote. That is called national political party. That is called national political party. There are three conditions. Okay, there are three conditions. First condition is that 4 states in Lok Sabha elections. That means a political party, if wants to make itself a national political party, it must contest elections at least from 4 states in the Lok Sabha election. And next condition is wins at least 4 seats. That means in 4 states altogether it needs at least 4 seats. Either it gains 6% of polled vote. There are 3 conditions. If any 2 are fulfilled, that is national political party. That is national political party. That means any 2 of the 3 conditions must be fulfilled. Then after, a political party can be considered as the national political party. It is categorized by the election commission. Okay, it is categorized by the election commission. Election commission provides the status of national political party or regional political party. We have only 7 national political parties. First of all, Congress I, next CPI, third CPI-M, fourth BJP, fifth BSP, sixth NCP, and 7th is Trinamool Congress, TMC. Only these 7 political parties out of 2,493 registered political party. समझे? Out of 2,493 registered political party, only 7 are the national political party. That means we can say that 2,493 political parties are registered in our country. Yesterday we have discussed it, which are national and regional. नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, अगर ये 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो बाकी के सभी 2493 में बाकी सभी के सभी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हैं। समझे? तो ये अब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को भी 2 भाग में हम बांटेंगे। पहला स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी और दूसरा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। समझे? 2 भाग में बांटेंगे। तो अब पहले देखिए स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस आई, उसके बाद सीपीआई 1925, उसके बाद सीपीआईएम 1964,
उसके बाद बीजेपी 1980, उसके बाद बीएसपी 1984, उसके बाद एनसीपी 1999 और उसके बाद पीएमसी 2004 के बाद आई है और 2014 में इसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिला है। तो मात्र ये 7 पॉलिटिकल पार्टी हैं जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, बाकी के सभी पॉलिटिकल पार्टी रीजनल को ही 2 भाग में बांटा गया है, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी का पहला कंडीशन है टू कंटेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम एट लीस्ट 2 लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, कम से कम 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सहभागिता होनी चाहिए। कम से कम 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव को वह कंटेस्ट करता हो। दूसरा शर्त है एटलीस्ट 6% वोट गेनर हो, एटलीस्ट 6% वोट गेनर हो। और तीसरा शर्त है कि एटलीस्ट 2 MLAs इन ईच विधानसभा। समझे, ये 3 शर्त है कि कम से कम 2 राज्यों से विधानसभा चुनाव लड़ता हो, कम से कम 6% सीट गेन करता हो, 6% वोट गेन करता हो और कम से कम 2 MLA उसके हर एक विधानसभा में हो, तो वह स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी होगी। इसमें भी शर्त है एनी टू आउट ऑफ 3। समझे, इस 3 में से कोई 2 शर्त पूरा करते हैं तो आप स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी में जाइएगा। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी क्या है? अब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है एक पर्टिकुलर स्टेट, किसी पर्टिकुलर स्टेट में उसका जन्म हो और पर्टिकुलर स्टेट में ही वह रहे, उसी स्टेट की राजनीति को डील करता हो, इलेक्शन कंटेस्ट करता हो, सरकार बनाता हो या सरकार को प्रभावित करता हो, वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। ज्यादातर इसमें ये जो देख रहे हैं ना 2493, इसमें ज्यादातर जो है वह रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ही है। समझे, ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी जो है वह रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ही है, क्योंकि स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी मात्र 100 है और 7 है नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी, बाकी के सभी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ही हैं। लेकिन साहब इनका उदय जो है यह डेमोक्रेसी को इम्फैटिकली प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। समझे, इम्फैटिकली इन्फ्लुएंस रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को नकारा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए साहब, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में सबसे बड़ी बात है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है इसके साथ सबसे बड़ा ग्रीवांसेस है कि लिमिटेड एरिया है इसके पास, कोई पूरे देश में इसको घूमना नहीं, पूरे देश की राजनीति करनी नहीं है, पूरे देश के लिए मैनिफेस्टो बनाना नहीं है, कल्चरल डाइवर्सिटी से इसको लेना देना नहीं है। ये एक होमोजेनियस पॉलिटिशियन है, ये समझे, होमोजेनियस पॉलिटिक्स है ये। एक राष्ट्र एक राज्य की राजनीति है। जैसे मान लीजिए शिवसेना है, उद्धव ठाकरे साहब हैं, उद्धव ठाकरे साहब मराठी लोग हैं, मराठी की राजनीति करते हैं, उनको गुजराती की राजनीति से बहुत कम लेना देना है, कोई ज्यादा मतलब नहीं रखना है। महाराष्ट्र की सत्ता पर उनका काबिज बना रहे, उनका कब्जा बना रहे, पहला उद्देश्य उनका यही होगा। नीतीश कुमार है, जनता दल यूनाइटेड, बिहार से उनको लेना देना है, उनको केंद्र से लेना देना नहीं है, उनको झारखंड से और उनको उत्तर प्रदेश से लेना देना नहीं है, बिहार पर उनका कब्जा बना है। तो लिमिटेड एरिया होता है, लोअर नंबर ऑफ वोटर होता है और मोबिलाइजेशन जो है वह
स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मोबिलाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है। रीजनल इश्यूज पर यह चुनाव लड़ता है, यह नेशनल इश्यूज पर चुनाव नहीं लड़ता है, यह रीजनल इश्यूज पर चुनाव लड़ता है। इसीलिए यह बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और हमारे देश में खास करके 1965 के बाद अगर आप गौर करके देखिए तो 1965 के बाद से ही हमारे देश में रीजनल पार्टी का वर्चस्व चला आ रहा है। 1965 के चुनाव में भी 8 राज्य, दक्षिण से लेकर पूरब तक 8 राज्य जो है कांग्रेस से बाहर चले गए थे। कांग्रेस ने 356 का उपयोग किया, संविधान की धारा 356 का उपयोग करके प्रेसिडेंशियल रूल लगाया और फिर जो है इलेक्शन को रिगिंग के माध्यम से जीत लिया। ठीक है। 1977 में मोरारजी देसाई आए तो मोरारजी देसाई ने भी, आपको हमने फेडरलिज्म में बताया था, 11 कांग्रेस शासित राज्यों में 356 का उपयोग कर दिया उन्होंने और वहां जनता पार्टी को एस्टेब्लिश कर दिया। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी आई तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने जनता पार्टी के सारे शासित राज्यों में 356 का उपयोग कर दिया और वहां कांग्रेस को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। लेकिन मोरारजी देसाई ने एक अमेंडमेंट कर दिया था कि 356 का उपयोग करे केंद्र सरकार, लेकिन इस पर सुनवाई और कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। जब से यह मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में गया तब से रीजनल पार्टी भारत में बहुत स्ट्रांग हो गई, क्योंकि किसी भी पार्टी को बर्खास्त करने के लिए, किसी भी सत्ता को बर्खास्त करने के लिए आप 356 का उपयोग करेंगे, ठीक है करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर उसको जस्टिफाई नहीं किया तो वो सरकार फिर से बहाल हो जाएगी। इसीलिए केंद्र सरकार जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की हो वह रीजनल पार्टी का अब सम्मान करता है, क्योंकि उसकी बेइज्जती होगी अगर सुप्रीम कोर्ट उसको उस सरकार को फिर से बहाल कर देता है तो। इसीलिए रीजनल पॉलिटिकल पार्टी आज वर्चस्व में है। हमारे देश में सबसे ज्यादा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ही वर्चस्व में। सारे नेशनल पार्टी जो है वो अलायंस के चक्कर में रहते हैं पड़े। आपको हमने कल बताया था कि साहब एनडीए और यूपीए 2 अलायंसेस हैं हमारे देश में जो सत्ता में रहते हैं। अब देखिए इसमें सीपीआई और सीपीआईएम ये दोनों जो है 2004 में कांग्रेस के साथ यूपीए में अलायंस में था, समझे। बीएसपी, एनसीपी ये भी यूपीए के अलायंस में था 2004 में। बीजेपी है, बीजेपी